ہم کو جواب دیا جائے اور جلدی میں پھر کوئی آبویسلی اسسٹنس مل بھی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے ایک جج ہوا کرتے تھے یہاں پہ، وہ خواجہ صاحب، ان کا یہ ہوتا تھا وہ بیچ میں سے چیز نکالتے تھے اور پوچھنا شروع کرتے تھے. ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے ایک سوال فریم کیا تو آپ ہمیں پوچھ لیں. تو یہ چیز جو تھی یہ اس وقت میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سارے پوائنٹس لکھ دیں. اس سے قبل کہ میں یہ کہتا، میں بہت ہی مشکور ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کا. انہوں نے خود یہ بات کی، انہوں نے کہا آپ نے جو کہنا ہے آپ لکھ کے کہہ دیں. میں نے فوراً ان سے ایگری کیا. میں انفیکٹ آج بھی لکھ کے لایا ہوں، میں ابھی بھی دے سکتا تھا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیز ان کی طرف سے آئے. اب ان کی طرف سے آئی ہے، مجھے اور ٹائم مل گیا. میں بالکل لکھ کے ان کے گوش گزار ہر چیز. ایک سیکنڈ ون لاسٹ تھنگ، میں لکھ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ تمام چیزیں گوش گزار کروں گا. اور مجھے امید ہے کہ میں نے ان سے جو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اپنے پوائنٹس فارمولیٹ کریں. میں اور چیف جسٹس صاحب دونوں اس وقت اس چیز پہ کنورج کر رہے ہیں کہ جب لکھ کے بات ہوتی ہے، جب رولز آف دا گیم سیٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کانشنس میں اور قانون میں صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اس سے زیادہ آج کے لیے میرا خیال ہے مجھے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے خوش ہیں کہ آپ کو لکھ کے دلائل دینے کا موقع. چیف جسٹس سننے کو گوارا نہیں ہے 2 منٹ یا 5 منٹ، اور آپ کے دلائل کے دوران وہ اٹھ کر چلے گئے. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا اس کیس سے تعلق کوئی نہیں ہے، آپ ایک فرد کے وکیل ہیں اور ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو آپ ابھی بھی خوش ہیں؟ میں بہت خوش ہوں. میں چیف جسٹس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کیونکہ آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن کورٹ جو ہے وہ جلدی پروسیڈنگ ختم کرتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے اتنا زیادہ موقع دیا. عرفان قادر کو آپ کو 10 سیکنڈ بھی دے دیں تو بہت ہوتا ہے، اور اگر عرفان قادر کو آپ 2 منٹ دے دیں تو کئی دفعہ ہوا ہے یہاں اسی کورٹ میں کہ میں نے پورے کیسز کنکلوڈ کیے ہوں. تو آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے مجھے تقریباً 2 سے 3 منٹ دے دیے، جس کا کہ میں بہت گریٹفل ہوں. حتیٰ کہ وہ ایک اور جج صاحب تھے، انہوں نے بھی بیچ میں سوال کیے، ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوال روک دیا اور مجھے 2 منٹ بات کرنے دیا. اچھا، بینچ کی تشکیل پہ آپ کو کوئی اعتراض؟ جی بینچ کی تشکیل کو یقین ہے کہ سر وہ آپ کو اسسٹنٹ، اچھا بینچ کی تشکیل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کی بھی رائے لوں گا، کیونکہ آپ آبزرو کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ کا جو امپریشن ہے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے ہم سب کو عزیز ہے. اس انسٹیٹیوشن کو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ایک ان بائسڈ انسٹیٹیوشن نظر آئے. اس کے لیے آپ لوگوں کی رائے بھی ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور اگر ضرورت پڑے گی کہ انسٹیٹیوشن کا امیج ہم نے انہانس کرنا ہے تو ہم اس چیز پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ بینچ جو ہے اس کا لارجر کمپلیکشن ہو، تاکہ کل کو کوئی یہ بات نہ کرے کہ کچھ ججز نے مل کے سارے ملک کا فیصلہ کر دیا تھا. اس پہ سوچ سکتے ہیں. سر پورے 15 ستمبر کو ملک کے فیصلے کے لیے یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا. سر آپ کو یقین ہے کہ سر آپ کو اسسٹنٹس کے لیے دوبارہ بلائیں گے؟ جی آپ کو اسسٹنٹس کے لیے دوبارہ بلائیں گے جو آج دیکھیں، میں کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو رہا. میں پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں، جو کہ ہائیسٹ فنکشنری ہیں، باوجود اس کے کہ وہ پاکستان کی کسی کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے، لیکن رول آف لاء کی خاطر، کانسٹیٹیوشن کی خاطر وہ کنسرنز شیئر کرتے ہیں عدالتوں کے. اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، بہت بڑا سٹیپ لیا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں جا کے ان کے جو کنسرنز ہیں اور کورٹ کے کنسرنز کو سمجھوں، تاکہ انسٹیٹیوشنز جو آپس میں ہم آہنگی سے چلیں، نہ کہ آپس میں کوئی ان کے درمیان کوئی ناہمواری ہو یا ڈس ہارمنی ہو. اچھا، عرفان قادر صاحب، کہا گیا کہ ہم اوور آل سسٹم کو، نظام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک پرٹیکولر کیس جس میں آپ پرائم منسٹر کی طرف سے پیش ہوئے ہیں، اس کے آئیوز اور پھر ٹرانسفر جو پچھلے فیبرری میں ہو گیا تھا، اس تک ججز کا کنسرن تھا. ایک طرف عدالت یہ کہتی ہے کہ ہم اوور آل سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایک پرٹیکولر کیس کے حوالے سے سوال جواب کرتے ہیں. اور سر اس میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ کا یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ عدالت کو جو اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ میں نے ابھی اس سے پہلے میں نے آپ سے کو وضاحت کیا ہے کہ ان کو پورے سسٹم کو ہی دیکھنا چاہیے. اور اگر وہ صرف ایک حصے کو دیکھیں گے اور باقی کو چھوڑ دیں گے تو پھر میری یہ ریکویسٹ ہوگی ان سے اور التجا ہوگی کہ پھر کچھ مت دیکھیں، کیونکہ تو فائل بھی منگوا لی انہوں نے. ایک سیکنڈ سر، ان کا سوال تھا ٹیرل صاحب نہیں، ان کی آواز پہلے چلے چھوڑے جی. آپ پہلے یہ بتائیے، وزیر اعظم کو تو نوٹس ہی نہیں ہوا تھا، تو آپ کس حیثیت سے پیش ہوں گے؟
The second question नहीं, is इस पे रुक जाए ना, नहीं एक मिनट इस पे रुक जाए। इसके साथ नहीं, अब दूसरा 6 सवाल आपने इसका फिर दूसरा सवाल 6 सवाल नहीं, इसका दूसरा सवाल ये है कि जब शो मोटो लिया तो आपने कह दिया था कि इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन ही नहीं है, और ये तो नैब और FIA तो स्टेट को जवाबदेह हैं, प्राइम मिनिस्टर को हैं, तो आप फिर किस खाते में कोर्ट को असिस्ट करेंगे? आप कोर्ट के जो है उस पर बाकायदा इस पर एतराज़ लगाएंगे या कोई और इस तरह के कानूनी दलाइल करेंगे? मैंने आपको बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर के कंसर्न्स क्या हैं। उनके सिर्फ एक ही कंसर्न है, वो ये है कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट की कॉन्शंस उसको उन्होंने सेटिस्फाई करना है, उन पर पाबंदी नहीं है, लेकिन मुल्की मफाद की खातिर, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की खातिर वो सबसे हाईएस्ट फंक्शनरी हैं जो कि आइन का ओथ उठाया हुआ है। तो इसलिए कोशिश ये है कि उनको और कोर्ट के कंसर्न और उनकी कंसर्न को सामने रख के इन जक्स्टा पोजीशन रखा जाए ताकि कोर्ट को आसानी हो एक सही फैसला करने। कादर साहब, इन ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या आपके क्लाइंट का कोई हाथ है? इन ट्रांसफर पोस्टिंग में अच्छा, मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनका हाथ नहीं है, लेकिन जहाँ तक पोस्टिंग और ट्रांसफर्स का मामला है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रिपोजिटरी हैं पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के। अच्छा, लिहाजा एक सेकंड एक शख्स जिनके खिलाफ कुछ केसेस होते हैं, तो अगर वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, अगर वो अहम डिसीजंस ले सकते हैं, तो फिर ये कि अगर उनके दौरान में कहीं पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो गया और कोई डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं आया कि उन्होंने इंटरफियर किया, मैं तो कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया हुआ है कि अगर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग मेलाफाइडी भी हो तो अदालतें उसमें नहीं जाएंगी, यहाँ तक कह दिया है। लेकिन यहाँ पे तो ये केस ही नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने कोई मेलाफाइडी ट्रांसफ़र जो है वज़ीर आज़म साहब के कहने पे की गई है। मेरे सामने अभी तक कोई शायद इस तरह के नहीं है। अच्छा, आपके क्लाइंट जो है इस्तीफा दे दें और कानून का सामना करें और फिर उसके बाद कोई भी अप्रीहेंशन ना रहे, ताकि क्यों इस्तीफ़ा दे दें? पाकिस्तान में जितने वज़ीर आज़म है, जितनी काबीना है, सब के खिलाफ केसेस हैं, सारे से अगर इस्तीफ़ा दे दो तो हुकूमत ही फिर कभी नहीं रहेगी, यहाँ पे कभी हुकूमत बनेगी नहीं। अच्छा इरफान साहब, ये जो कोर्ट का इंक्वायरी थी कि ये क्या फ्रेम ऑफ चार्ज हो गया है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, ये माइक्रो मैनेजिंग नहीं है? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस सर, कोर्ट ने पूछा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसमें क्या चार्ज फ्रेम हो चुका है, क्या ये माइक्रो मैनेजिंग? देखिए, कोर्ट के ज़हन में अभी तक वो NRO केस नहीं निकल सकता। केस की फाइल भी आज मैं आपको NRO केस याद कराता हूँ। वो हमें बताना पड़ेगा इनको, हमने असिस्ट करना है इनको। देखिए, NRO के बारे में बड़ा जनरल इंप्रेशन था उस ज़माने की सारी सियासी पार्टियों ने जो इलेक्शन लड़ा था वो इस पे लड़ा था कि NRO बड़ी बुरी चीज़ है। दर हकीकत NRO बुरी चीज़ थी या अच्छी चीज़ थी, वो साबित हो गया कि जब NRO को ख़त्म कर दिया गया और केसेस चलाए गए तो 80 to 90% केसेस जो हैं वो एक्विटल्स में ख़त्म हो गए थे। जब क्योंकि कोर्ट ने उस केस पे रिलाई करते हुए ये सस्पिशंस को एंटरटेन किया है, जब कोर्ट को हम ये बताएंगे कि ये जो सस्पिशंस हैं ये ऑलरेडी गलत साबित हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये कोर्ट, मुझे बड़ी उम्मीद है, ये रिसेप्टिव कोर्ट है, ये बड़े आराम से सुनेंगे। और आज तो बहुत टाइम था, इंशाल्लाह 3 मिनट ये कोर्ट के चले गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे कोई 3 से 4 मिनट अगर ये और दे दें तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि मैं इस कोर्ट को बावर करा सकूँ कि प्राइम मिनिस्टर और आपकी जो कंसर्न्स हैं वो यकजा हैं और दोनों मिल के सारे सिस्टम को चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से चले। और अच्छा कादर साहब, ये बताएं कि क्या आप समझते हैं जजेस के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस और सवालात की वजह से आपके जो क्लाइंट के ऊपर मुकदमात हैं उन पे असर पड़ेगा, और क्या आप इसे मीडिया ट्रायल समझते हैं? ये मैं समझता हूँ कि जजेस को बड़ा केयरफुल होना चाहिए अपने रिमार्क्स में। कई दफ़ा होता ही है कि जजेस जो हैं पूछते पूछते ना वो उनको एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें आता है, थोड़ा मजाक होता है, थोड़ा ये होता है जिससे कि तंज नहीं होता, वो कुछ लोगों का अंदाज़ होता है, लेकिन इम्प्रेशन ये मिलता है कि यार वो जजेस ने तंज कर दिया। अच्छा, वो इम्प्रेशन जब मिलता है कि तंज कर दिया तो फिर सवाल पैदा होता है किस पे तंज किया। आप लोग फ़ौरन समझ जाते हैं किस पे तंज किया, तो इसका नुकसान जो है वो जिस पे तंज हुआ है उस पर इतना नहीं होता जितना जजेस पे होता है, क्योंकि इससे कोर्ट की जो न्यूट्रलिटी है वो एटलीस्ट होते हुए नज़र नहीं आती। कोर्ट न्यूट्रल है लेकिन फिर होते हुए नज़र नहीं इरफान कादिर साहब, मुजाहिदुल अकबर नकवी साहब जो है उन्होंने ये कहा कि चालान फर्द जुर्म क्यों नहीं आयद हुआ, वो फाइल लेके हैं, तो ये पर्टिकुलर केस के बारे में सुन रहे थे आपके क्लाइंट के। मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि पाकिस्तान के सारे केस मंगा लें जहाँ फर्द जुर्म आयद नहीं है। समझे ना, इसमें हंसी की बात नहीं है। आप फिर हंसना शुरू कर दिए। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग।
क्योंकि फिर सारे केस मंगा लें, अगर आपने यही देखना है फिर आप अपने भी सारे केस मंगाएं, वो भी मंगाएं, इससे 22 नजर नहीं सर ये केसेस भी चलाए। वो भी चलाएं, सारे चलाएं ना जी। सर इसमें 184 में 22 कैसे मतलब आप जी आई थिंक आप चूँकि सब हर वक्त रीज़न को ढूंढते हैं और मैं भी पिछले कई सालों से रीज़न को ही ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं और आप जैसे कोई एक पेज पे आते जा रहे हैं वक्त के साथ। बस इरफान कादिर साहब, अभी आपने कहा कि एनआरओ केस किए हुए, लेकिन कोर्ट तो रिलाई ही एनआरओ केस के अंदर दी गई गाइडलाइंस, अगर आप बिल्कुल इंशाल्लाह जब मैं एनआरओ केस पे जब वो मुझे मौका देंगे, अगर देंगे तो मैं उनको इंशाल्लाह इस चीज़ पे सेटिस्फाई करूंगा, क्योंकि एनआरओ केस जो है ना उससे जिस कदर ज़्यादतियाँ की गई पॉलिटिकल माइलेज, यानी पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए इनोसेंट लोगों को जिस कदर तंग किया गया, ऐसे भी केसेस हुए जहाँ लोग, मेरा ख्याल है कि उनकी जान तक चली गई थी, तो वो रिविजन करने के लिए तो बाद में पता लगा था दे वर इनोसेंट। अच्छा एक आखिरी बात, एक सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हमेशा से बड़े कंसर्न रहे हैं अबाउट द इनोसेंट। मैं इवन जब प्रोसिक्यूटर जनरल था आज से कोई 18 साल पहले, 19 साल 20 साल पहले, 18 साल पहले नैब के, तो मैं कभी भी पॉपुलर सेंटीमेंट की तरफ नहीं जाता था कि हर कोई चाह रहा है कि जी वो हम लोगों के खिलाफ केसेस बनाएं, लोग क्या जी बड़े करप्ट लोग पकड़े गए हैं, जहाँ 20 पकड़े जा रहे हैं हम 100 पकड़ लें। मेरी कंसर्न ये होती थी कि जहाँ तक हो हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि इनोसेंट को हमने नहीं फंसाना, सिर्फ अपना इश्तिहार लगाने के लिए कि हम बड़ा कमाल कर रहे हैं। लेकिन ये तो आप मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ दौर की, तो वो इतने मुनसिफाना उनका रवैया था उनकी हुकूमत का, और आप उनके प्रोसिक्यूटर जनरल थे। ये बिल्कुल, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको आज बताता हूँ कि जब सुने जब मैंने ये शुरू की चीज़, इंटरनल वर्किंग के अंदर ये चीज़ शुरू की और बहुत कंसर्न मेरा हुआ, मेरे लिखे हुए नोट्स भी वहाँ मौजूद हैं, अगर वो निकलवा लेना उससे और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो शुरू में यहाँ तक बात हुई इंटरनली कि हम तो लेके आए थे प्रोसिक्यूटर जनरल, हमें मिल गया डिफेंस काउंसिल, और इसी चीज़ पे जब बहुत सारे डायरेक्टर्स ने ये चीज़ उठाई और मुझ तक भी वो बातें मेरे कानों तक पहुँची, तो एक सेमिनार हो रहा था डायरेक्टर्स का, उस दिन मैं चीफ गेस्ट था, तो मैंने उनको पहली बात ही ये की, मैंने कहा जी मेरे बारे में आप लोगों को ये इम्प्रेशन है कि मैं डिफेंस काउंसिल हूँ, ये इम्प्रेशन आपका दुरुस्त है। मैं डिफेंस काउंसिल रहूँगा और अगर मैं ये डिफेंस काउंसिल का लिबादा नहीं ओढ़ूँगा तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी स्क्रूटनी में कभी सही तरह से नहीं करूँगा। सियासी इंजीनियरिंग कैसे होगी? ठीक है ना। अच्छा अब रहा सियासी इंजीनियरिंग का, उस वक्त के पीरियड में सियासी इंजीनियरिंग नैब इस्तेमाल तो नहीं। अच्छा इसके बारे में कि नैब कैसे इस्तेमाल हुआ, ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा इस वक्त बात नहीं करना चाहता। अनकॉन्शियसली शायद कभी गलतियाँ हुई हों, ये नहीं मैं कहता, लेकिन बाय एंड लार्ज उस वक्त जो नैब चल रही थी उसमें जनरल मुनीर, जनरल शाहिद अजीज़, उनसे मेरा काफ़ी वास्ता था और बड़े कैंडिड हमारे डिस्कशन होते थे और मुझे बहुत एक कंफर्ट लेवल एक आ गया था। शुरू में उनको ये था, लोग उनके कान भरते थे कि जी ये वकील तो पता नहीं ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि भाई ये शख्स जो है जो भी बात करता है ये अपनी इसकी नेक नियति है, ये ऑनेस्टली फील करता है। वो मुझसे आपको देखते हैं फिर आप इस सुप्रीम कोर्ट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात आपसे सर होगा सर, आपने आखिर में कहा था कि जी एंड द कोर्ट इज बिहाइंड है। नहीं मैंने आई नेवर सेड द कोर्ट इज बिहाइंड। मैंने कहा था कि इस वक्त दो पॉलिटिकल राइवल्स जो हैं दे आर पिस्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो कोर्ट की तरफ से अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन आती है तो कोर्ट पॉलिटिक्स में ड्रैग होता है। ये जुमला मैं मुकम्मल करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आज जुमे की वजह से, तो उन्होंने कहा कि आज हम इसको आपको सुनेंगे, इस पर आप लिख के भी दे दें। तो मेरे लिए कोर्ट ने बड़ी आसानी कर दी है, जो कह दिया मैं लिख के दे दूँ, उससे इंशाल्लाह चीज़ें और क्लियर होंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।